students, we are running under the P block elements. और ये P block इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि टोटली बेस्ड ऑन रिएक्शन, टोटली रिएक्शन बेस्ड, कंसेप्चुअल इसमें बहुत जरूरी है, बहुत अधिक इसमें कंसेप्ट की जरूरी है। 11th में आपने रेडॉक्स केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग मींस बेस पर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, पोलर नॉन पोलर एंड रेडॉक्स केमिस्ट्री, these topics are highly applicable in P block elements. P block elements में इसलिए कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड की हो, उसको पढ़ने के लिए पहले हमें देखना पड़ेगा उसका बेसिक, कि वो कंपाउंड किस फॉर्म में अपनी वर्किंग कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में, एसिड के रूप में, बेस के रूप में, या दोनों के फॉर्म में। इट इज नेसेसरी। और इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्रॉपर्टीज किसी कंपाउंड की पढ़ते हैं तो नो डाउट that will retain for long time in your brain. Okay, and आज इस लेक्चर में I will discuss under the 17th group element, especially the chemical properties of chlorine along with preparation process. Under 17th group elements means halogens, especially about Cl2, chlorine gas. You know well, for the chlorine, its bond structure this. Okay, its bond order is single bonded 1. Its color greenish yellow. Its color is, dear student, greenish yellow. Okay, it is not so much poisonous. This. Okay, now about its preparation process. Under the preparation process, first manganese dioxide allowed to interact with HCl, hydrogen chloride, then it used to form Cl2 plus MnCl2 plus H2O, Cl2 plus MnCl2 plus H2O, balancing do by yourself. This is manganese dioxide. It is also known as pyrolusine. Okay, and second, industrial preparation means manufacturing. Its manufacturing is done by decon process. What is the decon process? In this process, the mixture of HCl and air, means here O2 is taken from air, is heated along with cupric chloride as a catalyst under 723 Kelvin temperature. You know, then the formation of Cl2 take place along with water. Okay, 4 HCl twice H2O plus 2 Cl2. This is the decant process. It is most popular process, but one thing limitation. In this process, the chlorine which is prepared by this process, it has the impurity of nitrogen gas which is not removed by this process. और ये नाइट्रोजन गैस की इम्प्योरिटी कहाँ से गई? ये एयर लिया है, और एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस. तो एयर में ऑक्सीजन तो इसके साथ इंटरेक्ट हो गई और एक क्लोरीन बन गई, लेकिन नाइट्रोजन गैस इम्प्योरिटी के रूप में बनी रहती है, जिसे इस प्रोसेस द्वारा दूर करना पॉसिबल नहीं है. ओके, नाउ अबाउट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज. Definitely dear student, about its chemical in physical properties oral. In case of physical properties, first point, chlorine present in gaseous state. Second point, it has greenish color without any smell, having no smell but has
greenish yellow color. It is sparingly soluble in water. And now about chemical properties. Dear student, to discuss its chemical properties, it is necessary to decide the working criteria of chlorine. मीन्स क्लोरीन कितने रूपों में वर्क करती है, और जब इस तरह करेंगे तभी इसकी रिएक्शन लर्न कर सकते हैं. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू लर्न ऑल द रिएक्शन विद फुल कमांडिंग. ओके, अतः ये किस रूपों में वर्क करेगा ये देखिए. अपनी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये फॉलोइंग फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है. कौन कौन से? फर्स्ट है, फर्स्ट कैटेगरी वर्किंग एज एसिडिक compound. No doubt it has acidic nature due to highly electronegative nature. B, working as oxidizing agent. And third one, working as bleaching agent. Okay, these are the three categories. क्लोरीन जितनी भी अपनी केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है वो इन्हीं तीन फॉर्म में शो करेगा. Some of the chemical properties are based on its acidic nature. In this category, chlorine used to perform its reaction with those compounds which are basic in nature when it is working as an oxidizing agent. और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? कि इलेक्ट्रॉन्स आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है दिस हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं. एंड दोज एलिमेंट व्हिच हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन देयर सेल्फ रिडक्शन टेक प्लेस. और बेटा जिनका खुद का रिडक्शन होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दैट्स व्हाई these also work as a oxidizing agent and also work as a bleaching agent. Now we are going to discuss about first category, means working as acid, working as an acidic compound. और बेटा एसिडिक कंपाउंड में वर्क करेगा तो इट विल परफॉर्म इट्स रिएक्शन विद ऑल दोज कंपाउंड व्हिच आर बेसिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल, as first reaction with NaOH. This is the base and considered as argineous base. ओके, अब देखिए जब कभी भी हाइड्रोजन से कोई बेस रिएक्शन कराएगा तो उसके बनने वाली प्रोडक्ट, उससे परफॉर्म होने वाली रिएक्शन उस बेस के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं. मींस लो कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन मींस मिनिमम अमाउंट है या मैक्सिमम अमाउंट. तो पहली कंडीशन इसकी होगी विद मिनिमम NaOH, या इसको इसी को कह सकते हो विद डाइल्यूट NaOH. सी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, NaOH प्लस Cl2 gives out NaOCl प्लस NaCl और प्लस H2. NaOCl, NaCl as well as H2O. Correct? And this is, dear student, this one is known as sodium hypochlorite. Balancing do by yourself. Okay? And B condition with maximum NaOH. Maximum NaOH means with concentrated NaOH. In this case, the product will change. Related product must change. NaOH और प्लस Cl2. अब इस बार कंसंट्रेट है, मतलब इसकी क्वांटिटी ज्यादा है. Then it will form NaClO3 plus NaCl plus H2. This name of this one is sodium chlorate. Okay? तो डाइल्यूट हाइपोक्लोराइड इन केस ऑफ सोडियम क्लोरेट. क्लियर? और सेम यही भी होगा, यू कैन टेक एनी वन अदर्स, कोई दूसरा भी आप बेस ले सकते हैं. तो व्यू ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सिमिलर यही होगा. जैसे नेक्स्ट में बता देते हैं नंबर 2, रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, सिंपली नोन एज स्लेट लाइन. Reaction with calcium hydroxide solution. It has also two conditions. With
minimum calcium hydroxide solution. V what the formation of product is same, or plus Cl2 gives out CaOCl whole twice plus CaCl2 plus H2. Why? Here calcium is divalent or OCl is monovalent. The product CaOCl whole twice, and name of this product is calcium hypochlorite, similar just like NaOH. Clear? And B part with maximum calcium hydroxide solution, or simply can say with concentrated calcium hydroxide solution. Calcium hydroxide plus Cl2 gives out CaClO3 whole twice plus CaCl2 plus H2. Okay, this is calcium hypochlorite and this is known as calcium chlorate. And B of the formation of product is same, but in this case reaction with dry calcium hydroxide, solid है, dry state में, then the product used to change. Now when it is allowed to interact with calcium hydroxide, then the CaOCl2 and plus H2, and this is known as bleaching powder. In this case the formation of here bleaching powder take place. क्लियर? समझ में आ रहे हैं ना? और अब हम कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन करा देते हैं, ऐसे बेसिस से कंपाउंड बेस तो होंगे लेकिन लुईस बेस होंगे, जस्ट लाइक रिएक्शन विद NH3 दैट इज आल्सो बेसिक इन नेचर, लेकिन NH3 OH नेगेटिव नहीं देते, आर्सेनियस बेस नहीं है, इट इज कंसीडर्ड टू बी द लुईस बेस. In all these reactions, chlorine working as an acidic component. Then under fourth reaction में reaction with NH3 means ammonia. It is also basic in nature. इसमें भी दो कंडीशन होंगी. In excess of NH3, पहली कंडीशन में यहाँ पर अमोनिया को एक्सेस में लेते हैं, और जब अमोनिया को एक्सेस में लेंगे, ये एक्सेस में है, तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, En2 plus NH4Cl. नाइट्रोजन गैस इज फॉर्म्ड, बैलेंसिंग टू बाय योरसेल्फ. एंड सेकेंड कंडीशन, इन excess of Cl2, same reaction is going to perform, but in this case ammonia is taken in as chlorine is taken in excess, then NH3 plus Cl2, since this one is in excess, then the product NCl3 or plus HCl. And you should remember here NCl is considered to be explosive compound. ये एक विस्फोटक पदार्थ है, explosive compound. तो in these reaction, dear student, आपने नोटिस किया, in these reaction chlorine used to perform its reaction with those compounds which are really basic in nature. Okay, and now I am going to discuss about all those chemical properties of chlorine in which chlorine gas is working as an oxidizing agent. That is working definitely as an oxidizing agent. So B part, working as oxidizing agent. Dear student, oxidizing agent किसे बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका सेल्फ रिडक्शन होता है. अल्टीमेटली इन दिस केस क्लोरीन जहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क करेगा, इसका खुद का रिडक्शन होगा, और जो कंपाउंड इससे इंटरेक्ट होगा यानी जिसके साथ रिएक्शन हो रही होगी, दैट विल ऑक्सीडाइज. ओके, सी जस्ट लाइक रिएक्शन विद नाइट्राइट्स, किसी भी मेटल का नाइट्राइट ले सकते हैं और क्लोरीन से रिएक्शन कराएं, जस्ट लाइक NaNO2 allowed to react with chlorine along with water. But all those chemical reactions where we have to increase oxygen to oxidize them, in such reaction we have to take chlorine water as oxidizing agent. केवल क्लोरीन नहीं, क्लोरीन के साथ वाटर भी लेंगे, क्लोरीन वाटर. अब क्लोरीन वाटर या ब्रोमीन वाटर हो, these are used as a best oxidizing agent.
ओके, और वाटर क्यों लिया? सो दैट इसका रिडक्शन हो जाएगा, H2O क्लोरीन का रिडक्शन करा देगा, नेसेंट ऑक्सीजन से टकराएगी और इसका ऑक्सीडेशन करा देगी। तो NaNO3 twice HCl. And in nitrite used to oxidize into nitrate by the same reaction with sulfide. और सल्फाइड से रिएक्शन, किसी भी मेटल का सल्फाइड लीजिए, if that is going to react with sulfide then it will form sulfate as potassium sulfide allowed to interact with chlorine water, there it will form potassium sulfate. ऑक्सीडेशन हुआ ना। और यहाँ क्लोरीन का कैसे प्रूव करेंगे रिडक्शन हो रहा है? यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ -1 है, यहाँ 0, यहाँ -1 है। ये सर्टिफाइड हो रहा है क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इस कंपाउंड का पोटेशियम सल्फाइड इज कन्वर्टेड इनटू पोटेशियम सल्फेट बाय द सेम थर्ड रिएक्शन विद फेरस सल्फेट। डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी रिमार्केबल पॉइंट हियर। फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन कराएंगे, नो डाउट फेरस सल्फेट विल ऑक्सीडाइज इनटू फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट का ऑक्सीडेशन बेटा फेरिक सल्फेट में होगा, बट you can select any one oxidizing agent, but the presence of H2SO4 is necessary because in this reaction the concentration of SO4 used to increase. That's why the presence of H2SO4 is compulsory. As FeSO4 plus Cl2 plus H2SO4, the product Fe2SO4 का whole thrice and plus H2 plus HCl, not H2 plus HCl. Here ferrous sulfate used to convert into ferric sulfate. Here the oxidation number of Fe+2, यहाँ Fe3, इसका बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लोरीन यहाँ 0, यहाँ -1, its reduction take place, balancing to bios. Okay, next reaction with stannous chloride. स्टेनस क्लोराइड, इस पे हमें वाटर लेने की जरूरत नहीं है, इट विल ऑक्सीडाइज इनटू स्टेनिक। यहाँ पे देखिए +2 है और यहाँ हो गया +4, ऑक्सीडेशन हो गया। क्लोरीन 0 से -1 में रिडक्शन हो रहा है, देख रहे हैं। ऑल दीज इन दीज रिएक्शन नो डाउट क्लोरीन इज वर्किंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रही है इन सारी रिएक्शन में, आपने देखा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ रिएक्शन विद H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S come contact to Cl2, then sulfur plus twice HCl. It is also redox reaction, and in this reaction chlorine is working as oxidizing agent. Why? क्लोरीन 0 -1 रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ सल्फर -2, यहाँ 0, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडाइज करा कौन रहा है? Cl2, खुद का रिडक्शन हो रहा है, सो इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ क्लियर। 6 रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड, दैट इज गोइंग टू परफॉर्म योर रिएक्शन विद सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखिए, एक तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड को क्लोरीन वाटर के साथ कराते हैं, इट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज इनटू sulfur trioxide along with byproduct like this. ओके बेटा, समझ रहे हैं ना। और एक कंडीशन में ये तब है जब क्लोरीन वाटर लेते हैं, क्लोरीन वाटर के केस में, और क्लोरीन वाटर नहीं लेते, सिंपल है, तो भी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। और दिस इज SO2Cl2, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज थायोनिल क्लोराइड, SO2Cl2। This is name of compound is thionyl chloride. This is the fourth. Fifth, इन सभी में देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिएक्शन विद Ki, पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं। यहाँ क्या होगा देखिए, Ki है और दैट इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद क्लोरीन, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा I2 का, आयोडीन का I2 में, एंड KCl ट्वाइस। किसी भी हैलाइड का ऑक्सीडेशन हैलोजन मॉलिक्यूल में होता है। बेटा चेक करिए, यहाँ आयोडीन -1 है, यहाँ 0 ऑक्सीडेशन, यहाँ क्लोरीन 0 और यहाँ क्लोरीन का -1। अल्टीमेटली बहुत सारी केमिकल रिएक्शन मैंने डिस्कस किया,
In this chemical reaction, chlorine is working as a, no doubt, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ढंग से देखना होता है क्योंकि रिएक्शन की कोई लिमिट नहीं होती है। देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ रिएक्शन। यहां देखिए ये 6 में रिएक्शन विद टर्पेंटाइल आयन, टारपीन का तेल, टर्पेंटाइल आयन में टारपीन, इसका फार्मूला C10H16। दिस इज नोन एज टर्पेंटाइल आयन, C10H16 and plus Cl2, it isolate to carbon, now plus HCl, very important reaction। कार्बन अलग और हाइड्रोजन Cl के साथ मिलकर क्या बना देगी HCl। बैलेंसिंग, बैलेंस करना है, 16 है यहाँ 8 कर दीजिए, यहाँ 16 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ 10। दिस इज इंडिविजुअल रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। 7 ओके। आप ध्यान से देखो तो इसमें पता चलेगा, फंडामेंटल आ गया। सपोज हम यही रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन विद H2 और H2 के साथ रिएक्शन है, तो H2 plus Cl2 gives out twice HCl। यहां पर भी हाइड्रोजन का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्लोरीन 0 से -1 रिडक्शन हो रहा है। हियर क्लोरीन इज आल्सो वर्किंग एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अल्टीमेटली बहुत सारी केमिकल रिएक्शन आपके सामने डिस्कस किया जहां पे क्लोरीन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का वर्क कर रही है। एंड लास्ट कैटेगरी सी, वर्किंग एज ब्लीचिंग एजेंट, वर्किंग एज ब्लीचिंग एजेंट। अब इसे ब्लीचिंग एजेंट के रूप में वर्क करेगा। ब्लीचिंग एजेंट, यू नो ब्लीचिंग क्या होता है, व्हाट इज द ब्लीचिंग? किसी कलर्ड ऑब्जेक्ट को कलरलेस कर देना, दैट इज काउंटेड अंडर द ब्लीचिंग। टू कन्वर्ट एनी कलर्ड ऑब्जेक्ट इनटू कलरलेस स्टेट इज नोन एज ब्लीचिंग फिनोमेना। एंड द कंपाउंड व्हिच इज रिस्पांसिबल, द सब्सटेंसेस आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल टू कन्वर्ट इनटू कलर्ड ऑब्जेक्ट इनटू कलरलेस स्टेट आर नोन एज ब्लीचिंग एजेंट। क्लोरीन उन्हीं में एक है, जैसे देखिए Cl2 पहले वाटर से रिएक्शन करेगा तो HOCl और प्लस HCl बनेगा, देन HOCl HCl और क्या रिलीज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज nascent oxygen। And what happened, you know, this nascent oxygen is responsible, ये कलर्ड ऑब्जेक्ट मिलेगा तो इसको क्या कर देगी, कलरलेस। दिस कलर्ड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू कलरलेस स्टेट। ओके, कलर्ड ऑब्जेक्ट कलरलेस स्टेट में आ जाएगा। और वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोरीन यूज्ड टू वर्क एज ए परमानेंट ब्लीच। मीन्स इसका जो ब्लीचिंग वर्क है वो परमानेंटली, मीन्स जिस ऑब्जेक्ट को कलरलेस करता है वो परमानेंटली कलरलेस हो जाता है, ठीक है। तो इसका ब्लीचिंग जो फिनोमिना है वो स्टेबल है। क्लियर? दीज आर द पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। आपने देखा 3 क्राइटेरिया थी, एक एज एसिडिक कंपाउंड के रूप में तो बेस से रिएक्शन कर रहे थे, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रूप में तो उन सारे कंपाउंड से कर रहे थे जो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं, और नेक्स्ट कैटेगरी आपने देखा इट इज आल्सो यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। और यही प्रोसेस होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर का क्लोरीन कैसे प्यूरिफिकेशन करती है, समझ रहे ना मेरी बात? क्लोरीन वाटर का कैसे प्यूरिफिकेशन करेगा, वहां पर भी यही होता है कि क्लोरीन क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन करके ये बनेगा, फिर नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी, और ये नेसेंट ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको किल कर देता है ये। सो क्लोरीन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। क्लियर? मैं पूरे आपके पी ब्लॉक में पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट देखिएगा, इस साल पी ब्लॉक का वेटेज बहुत ज्यादा है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी तरह से कंसेप्चुअल बेस्ड होते हैं, अदरवाइज इट इज टू डिफिकल्ट टू पुट कमांडिंग इन डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज इन टर्म्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल डिस्कस इट्स रिमेनिंग पार्ट। थैंक यू।